بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یقیناً کہانی پسند آئے گی، اور کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ وہ بڑی بے چینی کے عالم میں اپنے بنگلے کی چھت پر ٹہل رہے تھے۔ سال کی آخری رات تھی۔ 12 بجتے ہی شوقین مزاجوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ حالانکہ سب نے انہیں چھت پر جانے سے منع کیا تھا، مگر وہ کیا کرتے؟ دل کی بے چینی نے انہیں اس ٹھٹھا دینے والی سردی میں بھی چھت پر آنے پر مجبور کر دیا۔ رات خاصی بھیگ چکی تھی۔ چھت پر چاروں طرف اوس پڑی ہوئی تھی۔ دور دور تک آتشی ہتھیار شعلے اگل رہے تھے۔ پولیس والے بے حد مجبوری کے عالم میں گشت پر تھے۔ ان کی کوئی نہیں سن رہا تھا، اور زیادہ رعب جما کر وہ لڑکوں کے ہاتھوں اپنی بےزتی نہیں کروانا چاہ رہے تھے۔ ساحل سمندر پر نیو ایئر نائٹ منانے والوں چھچورے لڑکے اور ان جیسی ان کی ساتھی لڑکیوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ برگر فیملی کا سمبل ہونے کی شاید یہ شرط ہے کہ مادر پدر آزاد ہو کر ساحل سمندر پر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے پھریں۔ برگر پر انہیں اپنی بیٹی دعا یاد آ گئی۔ اسے بھی انہوں نے خاصا ماڈرن بنایا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی شادی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ دعا کی یاد نے ان کے دماغ میں پھر سے مرچیں بھر دیں۔ کل دعا پورے 32 سال کی ہو جائے گی۔ آج کے دور میں 25 سال سے اوپر ہونے والی لڑکیوں کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ رشتہ دیکھنے والی ماں اور بہنیں یہی چاہتی ہیں کہ ان کے لڑکے کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 سال کی لڑکی ملے، نہیں تو 10 سال کی 2 بھی چل جائیں گی۔ وہ اتنے بڑے بلڈر تھے، اربوں روپے کے پروجیکٹ چل رہے تھے۔ بیٹی کی قسمت کے آگے وہ ہار گئے تھے۔ ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی تھی، گاڑی بنگلہ سب کا لالچ دے دیا تھا، مگر شاید یہ مکافات عمل تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ دوست دلی اور 4 سکی بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ شکل و صورت اللہ کی بنائی ہوئی تھی، اس میں تو تبدیلی ممکن نہیں تھی، مگر ہاں، بہنوں نے لباس کے معاملے میں ہمیشہ بھائی کو شہزادہ بنا کر رکھا۔ بازار میں آنے والے سب سے بہترین کپڑے بنائے جاتے، ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ جوتے یا سینڈل ہوتے تھے، گھڑیاں بھی بے شمار تھیں۔ ان باتوں نے ان کا دماغ چوتھے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ بمشکل تمام میٹرک کیا، اس کے بعد باپ کے ساتھ آفس میں بیٹھنے لگے۔ ان کا ادارہ بہت مستحکم تھا، ان کے سارے پروجیکٹ چلتے تھے۔ جس اسکیم میں ہاتھ ڈالتے سارے پلاٹ اور فلیٹ ہاتھوں ہاتھ بک جاتے۔ جب ذرا شعور آیا تو بہنوں کو دلہن لانے کی فکر ہوئی۔ سب کی سب تلاش میں لگ گئیں۔ انہیں اپنے اکلوتے بھائی کے لیے چاند سی دلہن چاہیے تھی۔ لڑکیاں دیکھ دیکھ کر ناپسند کی جانے لگیں۔ ماں نے چاہا کہ اپنی بھتیجی کے لیے آئیں تو ساری بہنیں پیچھے پڑ گئیں۔ واہ ماں واہ، آپ کو نازیہ ہی نظر آئی ہمارے بھائی کے لیے؟ بڑی نے شکوہ کیا۔ کیا برائی ہے اس میں؟ اماں نے پوچھا۔ ناک دیکھی ہے آپ نے اس کی؟ لگتا ہے لوڈنگ ٹرک کا پہیہ گزر گیا ہو اوپر سے۔ سب سے چھوٹی بہن آ کر بولی۔ اپنے بھائی کو دیکھا ہے؟ وہ کون سا گل فام ہے؟ اماں نے جل کر جواب دیا۔ مردوں کی شکل تھوڑی دیکھی جاتی ہے، ان کی تو جیب دیکھی جاتی ہے، اور ہمارے بھائی کی جیب بہت بھاری ہے، اگر اسے دیکھ کر لوگ گھر آ کر بیٹی دیں گے۔ بیچ والی اکڑ کر بولی۔ اتنا غرور مت کرو، اللہ کو برا لگتا ہے۔ آپ کے بابا نے بیچ میں دخل اندازی کی۔ بس بابا، یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں، ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ دوسری نمبر والی قدسیہ تھی، وہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتی تھی۔ ماں باپ نے پھر چپ ساتھ لی، اور 6 کی 6 بہنیں کمر کس کر میدان میں اتر آئیں۔ جہاں سنتی کہ لڑکی اچھی ہے فوراً پہنچ جاتی، اور پھر گھر آ کر اس لڑکی کی نقل اتاری جاتی، چال ڈھال کا مذاق اڑایا جاتا۔ اگر یہ سب بہتر ہوتا تو جو لوازمات لڑکی والوں نے کھانے کے لیے پیش کیے ہوتے، ان میں کیڑے نکالے جاتے۔ یہ سلسلہ زیادہ طویل ہو گیا تو راجا نے خود ہی مداخلت کی۔ بھائی، تم لوگ کب تک خوار ہوتی رہو گی؟ کسی شادی والے دفتر سے مدد لے لو، راجا نے تجویز پیش کی۔ یہ بات ساری بہنوں کو بہت پسند آئی۔ اخبار کا سہارا لیا گیا اور ڈیفینس میں رہنے والی ایک خاتون کے دفتر میں دھاوا بول دیا گیا۔ انہوں نے ضرورت مند دیکھ کر اچھی خاصی فیس طلب کی، جو بہنوں نے بغیر اعتراض کے دے دی۔ پھر ان خاتون نے خوبصورت لڑکیوں کے فوٹو دکھائے۔ واقعی ان کے پاس بڑی حسین اور ماڈرن لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکی آخرکار پسند آ ہی گئی۔ اماں بابا رشتہ لے کر گئے۔ لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آئے، اور لڑکے کی جگہ زکوٹا جن کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ ان کی لڑکی واقعی حور جیسی تھی۔ وہ لوگ کسی طور پر نہ مانے، بہت پیشکش کی، مگر لڑکی کی ماں نے صاف کہہ دیا کہ روپیہ پیسہ آنی جانی شے ہے، شکل و صورت تو تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ اپنی حور جیسی بیٹی کو کیسے دے دیں؟ بہنوں کو بڑی شرمندگی ہوئی اور تھوڑا سا مورال ڈاؤن ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے ملنے جلنے والوں اور رشتہ داروں کو سمن کی تصویر دکھا کر یہ بڑی باتیں کی تھیں کہ ان کا راجہ بھائی کا رشتہ ہو گیا ہے۔ اب لڑکی والوں کے منع کر دینے سے بہت سبکی ہوتی۔ پہلی دفعہ انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اتنے دھن دولت کے باوجود صرف شکل و صورت کی وجہ سے ان کے بھائی کو رد کر دیا گیا ہے۔
इस बात ने सारी बहनों को बहुत उदास और शर्मिंदा कर दिया था। उन्होंने अंदर कोई बात किसी से कहने से तौबा कर ली, मगर शादी दफ्तर वाली खातून का पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार एक और मतलूबा लड़की मिल गई। लड़की के वालिदैन नहीं थे। भाई और भाभीियों के दरमियान में फुटबॉल बनी हुई थी, जिसको ज़रूरत पड़ती अपने साथ ले जाता, और वो इस ज़िंदगी से आजिज़ आ गई थी। इन हालात ने इसे अपने हुस्न से बेनियाज कर दिया था। जैसे ही राजा का पैगाम आया, इसने बड़ी भाभी से कह दिया कि बस अब आप लोग हाँ कर दें, मैं बहुत आजिज़ आ गई हूँ। एक बड़ी भाभी थी जो इससे वाकई अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करती थी, मगर दूसरी भाभियाँ इनके पास टिकने नहीं देती थी। उन्होंने आफियत इसी में समझी कि कोमल को शादी कर दी जाए। बड़ी भाभी की हैसियत से उन्होंने सबसे लड़ झगड़ कर कोमल को ब्याह दिया। कोमल ने घूंघट उठने के बाद देखा, सिवाय चारों तरफ फैली हुई बदसूरती के बकिया सब कुछ ठीक था। पैसे की इंतहा से ज़्यादा रेल बिल थी। सारी बहनें शादीशुदा थीं और भाभी पर वारी कुर्बान होती थीं। हर काम के लिए अलग नौकर था। सास ने मजीद एक नौकरानी का इजाफा कर दिया था जो सिर्फ कोमल के काम करती थी। और यूँ कोमल जो घर में काम कर करके थक चुकी थी, यहाँ राजा की रानी बनकर वाकई कोमल जैसी हो गई। नाक नक्शा तो पहले ही अच्छा था, रंग रूप निखरा तो हुस्न और बढ़ गया। सभी इस पर वारिसत के होने लगे। अल्लाह ने और करम किया और कोमल साल के अंदर एक बेइंतहा खूबसूरत बेटे की माँ बन गई। बच्चे को दादा दादी और फूफुओं ने जमीन पर ना उतरने दिया। कारपेट पर भी साफ चादर लगाकर इसे चलाया जाता, कहीं पाँव न गंदे हो जाएं। 2 साल की उम्र में बमुश्किल चलना सीख पाया। दूसरे साल अल्लाह ने एक बेटी दे दी। अल्लाह की शान थी, बच्ची बिल्कुल बाप और फुफ्फियों पर गई थी। वैसे ही फैली हुई चिपटी नाक, मोटे मोटे होंठ, अंदर को धंसी हुई आंखें और काला रंग। कोमल और राजा बच्ची को देखकर दुखी हो गए। बेटा जितना खूबसूरत था, बेटी इतनी ही नेग्रो टाइप, बिल्कुल अपनी जैसी भतीजी पाकर फूफियाँ चुप की चुप रह गईं। मगर अल्लाह के कामों में किसका दखल, वो बड़ा बेनियाज। हमारे किए की सज़ा हमें ऐसे देता है कि हमें बिलबिला भी नहीं सकें, फरियाद भी ना कर सकें, किसी के सामने जाकर दहाई भी ना दे सकें। राजा फिर भी मुतमईन थे। उन्हें अपनी बेतहाशा दौलत का अंदाज़ा था। अरे कोमल, जी उदास ना हो, अपनी दुआ को सोने में तोल कर दूंगा, आने वाला चूं भी ना कर सकेगा, मुंह बंद हो जाएगा साले का, उन्होंने सीना फुलाकर कहा। मगर ऐसा ना हो सका। 4 बहनों की अकलौती बहन दुआ आज उम्र के 32 साल तय कर चुकी थी। कल 1 जनवरी को इसकी सालगिरह थी। ये नहीं कि दुआ की शादी के लिए कोशिश न की गई हो। उन्होंने हर तरफ अपने हरकारे दौड़ाए हुए थे, मगर हर तरफ से नाकामी हुई। डिफेंस में बने खूबसूरत बंगले, गाड़ी और बैंक बैलेंस के बावजूद कोई इनकी दुआ को कबूल करने पर राजी नहीं होता था। रिश्ते बहुत आए, मगर एक दफ़ा आने के बाद दोबारा पलट कर ना आए। ये ज़िंदगी का बड़ा खौफनाक मोड़ था। अब उन्हें अपनी शादी के सिलसिले में होने वाली बहनों की गुफ्तगू याद आती थी, जिसमें वो भी बराबर के शरीक होते थे। पैसे के ज़म में उन्होंने बेशुमार लड़कियों का मजाक उड़ाया था। वो लोग नहीं देख रहे थे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा था। वो बंदे को ढील देता है, मगर जब रस्सी खींचता है तो बंदे की बोलती बंद हो जाती है, जैसे आजकल इनकी हो गई थी। शहर के सारे दफातर जो कि शादी के काम करवाते थे, उनकी खिदमात ली जा चुकी थी। और बेचारे क्या करते, किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते थे। घेर घर कर लड़के वालों को भेज देते और बाद में इनकी बातें सुनते। पिछले दिनों आने वाले लड़के वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी बेटी को अफ्रीका ले जाएं, वहाँ कोई ना कोई ज़रूर कबूल कर लेगा। वो चुप रह गए। किससे फरियाद करें सिवाय इस रब करीम के, जिसकी मखलूक का उन्होंने दिल खोल कर मजाक उड़ाया था। आखिर कहीं ना कहीं तो पकड़ होनी थी। कई बार इनका दिल चाहा कि कोमल से इजाज़त लेकर दुआ की प्लास्टिक सर्जरी करवा लें ताकि नाक नक्शा दुरुस्त हो जाएगा, मगर फिर डरते थे कहीं मजीद कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। बहुत आजिज़ आकर पिछले साल वो कोमल और दुआ के साथ उम्रे पर चले गए। तीनों ने बहुत रो रो कर दुआ मांगी। वहाँ से वापसी पर बहुत पुरुम्मीद थे, मगर कल 1 साल और गुजर जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। जब ठंड ज़्यादा बढ़ने लगी तो वो आवाज़ पैदा किए बगैर नीचे आ गए। यहाँ सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। दूर कहीं से अज़ानों की आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब ये था कि सुबह हो गई थी। ऐसे ही एक सुबह थी जब नर्स ने इन्हें दुआ की आमद की इतला दी थी। वो वज़ू करके अल्लाह के हुज़ूर झुक गए थे। दुआ के लिए हाथ उठाकर उन्होंने आंसू और हिचकियों के दरमियान अल्लाह से इल्तिजा की कि इनकी ख़ताएँ माफ़ कर दे और गैब से दुआ के लिए रिश्ता भेज दे, क्योंकि चारों भाइयों का मुतफ़िका फ़ैसला यह था कि जब तक बहन की शादी नहीं होगी वो शादी नहीं करेंगे। वो बाप थे, इनका भी दिल चाहता था कि घर में बच्चों की कलकारियाँ गूंजें, मगर ये सब का सब जब ही मुमकिन था जब दुआ की शादी हो जाती। नमाज ख़त्म करके वो उठे और बहुत आहिस्ता से अपने बेड पर जाकर लेट गए। कोमल बड़ी गहरी नींद सो रही थी। वो इतने ही बेकल हो रहे थे, इन्हें याद था कि दुआ की पैदाइश पर वो कितने मसरूर थे। जब नर्स ने गोश्त के लोथड़े को लाकर इनकी गोद में दिया तो वो चुप के चुप रह गए। उन्हें तो ये उम्मीद थी कि बेटी भी माँ और भाई जैसी होगी, मगर इसके उल्ट हुआ। ये तो कुछ भी नहीं हो सकता था सिवाय दुआ के।
नया साल शुरू हो चुका था। इन्हें अपने मेगा प्रोजेक्ट के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत थी जो तेज़ रफ्तार लिफ्ट और सिक्योरिटी सिस्टम को बिल्कुल ठीक तरह से नस्ब कर सके। इसलिए उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया था। काफ़ी दरख्वास्तें आई थीं। आज इन सब के इंटरव्यू थे, इसलिए वो तैयार होकर जल्दी दफ्तर चले गए। माशाल्लाह आने वालों की लाइन लगी हुई थी। ऑफिस में सारा अमला मौजूद था। लिस्ट इसके सामने रख दी गई। उन्होंने सबसे इंटरव्यू लिए। साफ पता चल रहा था कि सिफारिश से पास होने वालों की ये एक बड़ी खेप थी जो इंटरव्यू देने आई थी। आखिर में आज सिर्फ 2 उम्मीदवार ठीक निकले। उन्होंने दोनों को अपॉइंट कर लिया। इनका ये प्रोजेक्ट 1200 फ्लैटों पर मुश्तमिल था। उन्होंने दोनों को ट्राई करके देखा। दोनों अपने काम में खासे माहिर थे। एक साहब बाहर से पढ़कर आए थे, उन्होंने इसका खासा जम था। दूसरे लड़के ने अपने ही मुल्क से डिग्री ली थी। वो तालीम में इससे किसी तरह कम ना था, बल्कि बाहर वाली डिग्री से ज़्यादा जहानत पाकिस्तान वाले में थी। इसका नाम सजाद था। पहला फहद था। फहद एक खाते पीते घराने का चश्मो चिराग था। सिर्फ तजर्बे के लिए इनके दायरे में आया था, जबकि सजाद के घर में इसकी बेवा माँ थी। वो खासा ज़रूरतमंद था और बहुत मेहनत से काम कर रहा था और कंपनी की भलाई भी चाहता था। प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो राजा इसमें हद दर्जा मशगूल हो गए और कुछ अरसे के लिए जहन से दुआ का मसला निकल गया। इनके प्रोजेक्ट का ऐलान होते ही लगता था सारा शहर टूट पड़ा और लोगों के फ़ोन आने लगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे फ्लैट बुक हो गए। उन्होंने हमेशा सारे प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल किए थे, इसीलिए इनकी शोहरत बहुत अच्छी थी। काम शुरू होते ही इनकी मसरूफियत बहुत बढ़ गई। सजाद इस मौके पर इनका दस्तराज साबित हो रहा था। वो अपनी फील्ड में खासे माहिर थे। इसी वजह से राजा ज़्यादातर मशवरा इससे ही लेते थे। ये मुल्क में पहले फ्लैट थे जिनकी चारदीवारी के साथ साथ मुलाजमों का कमरा भी था। सजाद ही के कहने पर उन्होंने इन फ्लैटों का और इनके कमरों के साथ इंटरकॉम का रब्ता भी कर दिया था। यूँ इनके प्रोजेक्ट को और जला मिली थी। 2 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा हुआ था। उन्होंने वहीं अपने प्रोजेक्ट के लिए मखसूस कम्युनिटी हॉल की जगह को बराबर करवा के अपने वर्कर्स और मिलने वालों के लिए एक शानदार डिनर का अहतमाम किया, जिसमें साथ काम करने वालों के अलावा इनकी फैमिलीज भी आई हुई थीं। सजाद और फहद भी अपनी फैमिली के साथ आए थे। फहद के साथ इनकी बहनें और वालदैन थे, जबकि सजाद अपनी माँ को व्हील चेयर पर ले आया। वो सारा वक्त अपनी माँ के साथ रहा। राजा जब दोस्तों से फारिग होकर इधर आए तो सजाद की माँ को देखकर कुछ सोच में पड़ गए। बेटा, आपकी अम्मी का नाम क्या है? उन्होंने सजाद को एक तरफ ले जाकर पूछा। नाजिया अहमद। मेरे अबू अहमद हसन थे, सजाद ने बताया। क्या आपके नाना का नाम मिर्ज़ा सलामत अली था? उन्होंने दोबारा सवाल किया। जी हाँ, सजाद ने सर हिलाया। आओ यार, गले लग जाओ, तुम तो मेरी मामूजात बहन के बेटे हो। उन्होंने सजाद को गले लगाया। मैं सब लोगों से फारिग हो जाऊं, फिर तुमसे और तुम्हारी अम्मी से मिलता हूँ, अभी जाना मत। ये कहकर वो दोबारा अपने दोस्तों में चले गए। सबसे फारिग होकर वो जब लेडीज़ की तरफ आए तो सजाद इनके साथ था। नाजिया, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं राजा एजाज हूँ, उन्होंने नाजिया के करीब आकर कहा। मैं बिल्कुल पहचान गई थी, पहली ही नज़र में पहचान गई थी। शुक्र है आप भी अब अपनों को पहचानने लगे हैं, उन्होंने तंजिया लहजे में कहा। नहीं, ये बात नहीं। बाबा के इंतकाल के बाद मैं कामों में इतना मशगूल हो गया था कि किसी की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिला। आओ तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊँ, उन्होंने बात बदलने के लिए कहा। आओ मेरे साथ आओ, उन्होंने सजाद से कहा। सजाद माँ को लेकर इनके पीछे पीछे चल दिया। कोमल और दुआ एक कोने में बैठी थी। नाजिया ने कोमल और फिर दुआ को बड़े गौर से देखा, फिर जोर से हंस दी। उन्होंने दुआ को इशारे से अपने पास बुलाया और सर पर हाथ फेरे। इतने दिन कहाँ रही नाजिया? कोमल ने पूछा। शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। शोहर के इंतकाल के बाद पहली बीवी के बच्चों ने वहाँ टिकने ना दिया, सो सजाद को लेकर वापस आना पड़ा। हम जैसे बदसूरत लोगों का यही अंजाम होता है। यहाँ पर अपना स्कूल खोल लिया था, इस तरह गुजारा भी होता रहा और सजाद भी पढ़ गया और अब माशाल्लाह ये जॉब पर है। हमारा स्कूल भी हाई स्कूल हो गया है और सजाद की जॉब भी लग गई है। हम 2 माँ बेटे का खर्च ही कितना है, खूब मज़े से गुजर हो जाती है और बचत भी, नाजिया ने तफसील बताई। राजा बहुत खामोशी से सारी बात सुनते रहे। जिंदगी दोबारा अपनी डगर पर आ गई। मौसम तब्दील होने लगा तो बीमारियां फैल गईं। सजाद सख्त फ्लू में मुब्तला हो गया। जिस दिन लिफ्ट नस्ब होनी थी वो गैर हाजिर था। फहद और राजा बहुत परेशान थे। फहद से अकेले सारा काम नहीं हो रहा था, वो बार बार उलझ रहा था। तंग आकर राजा ने सोचा थोड़ी देर के लिए सजाद को ले आएं, इसलिए वो खुद ही से लेने चले गए। नाजिया ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वो टांगों के दर्द की वजह से व्हील चेयर पर रहती थीं। राजा को गाइड करके सजाद के कमरे तक ले गई। वो वाकई बुखार में था, मगर काम इतना अहम था कि उठकर तैयार होने चला गया। इतनी देर में नौकरानी चाय ले आई। पता है राजा, जब आपके घर की मासी ने, जो हमारे घर में भी काम करती है, आकर वो सब कुछ बताया जो आपने और आपकी बहनों ने मेरे मुतालिक कहा था, तो वो सुनकर मेरा दिल से बद्दुआ निकली थी कि खुदाया आपको भी मेरी जैसी बेटी देता कि आप सब भी इस दुख से गुजरें जिस दुख से मुझे गुजारा है। अल्लाह ने मेरी ये दुआ सुन ली और यकीन करें आपकी बेटी को देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। अब आपको अंदाज़ा होगा कि बेटी का दुख किसे कहते हैं, उन्होंने आहिस्ता से कहा तो राजा का सर शर्म से झुक गया। इतने में सजाद तैयार होकर आ गया।
वो दोनों खामोशी से बाहर आ गए। प्रोजेक्ट तक पहुंचते पहुंचते दवा ने असर दिखाया और सजाद खासा बेहतर हो गया। सारा काम पूरा करके राजा ही ने खुद घर छोड़कर आए। वापसी में सारे रास्ते नाजिया के अल्फाज इनके कानों में गूंजते रहे। वाकई अगर हमारे की सजा सिर्फ हमें मिले तो शायद इतनी तकलीफ ना हो जितनी हमारी औलाद के साथ होने वाले तकलीफदा हालात का दुख होता है। 2 दिन बड़े कर्ब के आलम में गुजरे। जब भी दुआ सामने आती इनकी आंखों में आंसू आ जाते। ये मेरे किए की सजा भुगत रही है, ये खलिश उन्हें कचोके लगाती। 2 दिन बाद अचानक वो एक अज़म के साथ उठे। मैं नाज़िया से माफ़ी मांग लूँगा, शायद इससे मेरी सज़ा में कुछ कमी हो जाए और मेरी दुआ को ज़िंदगी का साथी मिल जाए। इस वक्त प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। बहुत खामोशी से किसी को बताए बगैर उन्होंने गाड़ी निकाली और सजाद के घर चल दी। नाज़िया अपने स्कूल के ऑफिस में बैठी थी। इन्हें देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ कैसे राजा भाई? वो परेशान होकर बोली। सब ठीक है, मुझे आपसे काम था, उन्होंने आहिस्ता से कहा। आए बैठे, खैर तो है, मुझसे क्या काम आन पड़ा? उन्होंने हैरत से पूछा। नाज़िया, मैं तुम्हारा मुजरम था, मुझे बदवा दे देती मगर मेरी बेटी को बदवा देकर तुमने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी। मेरी लाखों की जायदाद भी मेरी बेटी के काम ना आ रही है। वो मेरी नादानी थी जो इस वक्त मेरे घर में हर लड़की का मजाक उड़ाया जाता था और मैं भी इनमें शामिल होता था। मैं तुमसे इंतहाई टूटे हुए दिल के साथ माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरी खता दिल से बख्श दो ताकि मेरी बेटी पर से ये असर ख़त्म हो और इस दुनिया के पर्दे पर कोई तो इसे कबूल कर ले। वो दोनों हाथ छोड़कर रो दिए। नाज़िया चुप की चुप रह गई। जय राजा भाई, मैंने आपको माफ़ किया, खुदा भी आपको माफ़ करे, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वो आंसू पोंछते उठे और बाहर निकल गए। नाज़िया बहुत दुख से इन्हें देखती रही। वो शक्ल की जितनी बुरी थी दिल की इतनी ही अच्छी थी। इन्हें राजा की हालत पर बहुत दुख हुआ। इन्हें याद आया कि यही शख्स एक वक्त फिरौन बना हुआ था। बहनों के चढ़ाने पर वो आपे से बाहर हो गए थे और हर लड़की हर खामी का मजाक उड़ाया करते थे। आज कितनी बेबसी के आलम में इनके आगे हाथ जोड़ रहे थे। अल्लाह तो किसी को इतना मजबूर ना करना, उन्होंने सदके दिल से दुआ की। सारा दिन वो चुप रही। राजा का दुख इनके रग रग में उतर गया था। शाम को सज्जाद आया तो माँ को उदास देकर परेशान हो गया। बहुत पूछने पर नाज़िया ने पूरा किस्सा सुनाया तो सज्जाद भी दुखी हो गया। वह दिली तौर पर माँ जैसा ही था। दोनों माँ बेटे रात गए तक इसी मौजूद पर बात करते रहे। अम्मी, अगर आप चाहें तो राजा मामा की मुश्किलात काम हो सकती हैं। सुबह नाश्ते पर सज्जाद ने माँ से कहा। क्या मतलब? नाज़िया ने उलझ कर पूछा। मैं अपने आप को पेश करता हूँ, आप इनसे बात कर लें, सज्जाद ने नजरें झुकाकर कहा। नाज़िया ने दोनों हाथ फैलाकर इसे गले लगा लिया। मेरे दिल में भी यही था मगर तुमसे कहते हुए डर रही थी कि कहीं तुम ये ना सोचो कि भतीजी की खातिर अम्मी ने कुर्बानी का बकरा बना लिया। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। अरे अम्मी, कैसी बातें करती हैं? सज्जाद माँ से लिपट गया। नाज़िया ने राजा का नंबर मिलाया। राजा भाई, मैं शाम को मिठाई लेकर आ रही हूँ आपके यहाँ, खाना भी आपके साथ खाएंगे हम लोग। मंगनी हमारे यहाँ रास नहीं आती, शादी की तारीख भी आज ही दे दीजिएगा। मैं अकेले रह रहकर थक गई हूँ, उन्होंने राजा से कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ राजा नाज़िया की बात सुनकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। सारा घर परेशान होकर इनके चारों तरफ जमा हो गया। क्या हुआ आखिर? कोमल ने झंझोड़ कर पूछा। वो नाज़िया शाम को आ रही है मिठाई लेकर, दुआ की बात सजाद से पक्की करने। वो फिर रो दिए। इस दफ़ा कोमल भी इनका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यकीनन आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए।